Hello everyone and welcome back to my channel. In this video I'm going to discuss the sample paper of class 9th retail and ये sample paper जो है बेटा वो CBSE ने prescribe किया है and this is of the session 2025-26. So let's start with the paper without wasting any time. So ये आपका 2025 और 26 का पेपर है. ओके जो आपका पेपर है वो आप देख सकते हैं बेटा क्वेश्चन पेपर जो आपका फाइनल में आएगा दैट विल बी ऑफ 50 मार्क्स. ठीक है वो आपका 50 मार्क्स का पेपर है और 2 आवर्स का होगा. तो दो सेक्शंस है पेपर में ए और बी. ए में जो है वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे और बी में सब्जेक्टिव होंगे. ठीक है साथ में टोटल 21 क्वेश्चंस होंगे जिसमें से आपको ओनली 15 अटेम्प्ट करने. तो करते हैं क्वेश्चन. सेक्शन ए ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस का है. क्वेश्चन नंबर 1 जो है बेटा दैट इज ऑफ एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स और 6 में से आपको 4 क्वेश्चंस करने हैं. एवरी क्वेश्चन इज ऑफ 1 मार्क. राइट. सो इन विच ईयर टर्म ग्रीन इकोनॉमी वाज फर्स्ट कॉइन्ड. तो इट वाज इन द ईयर 1989. सेकंड expressing certainty or affirmation even in tough situation is referred to as positive thinking. Third, grooming is a term which is associated with neat and clean appearance. ठीक है आप वीडियो को पॉज करके ऑप्शंस पढ़ सकते हैं. तो मैं राइट आंसर आपके सामने डिस्कस कर रही हूँ. फोर्थ पार्ट शॉर्ट रेंज वायरलेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इज नोन एज ब्लूटूथ. Fifth, Rahul is the owner of a sports shop. Identify his type of business activity, product business. Sixth, which of the following is not a C of effective communication? Right answer is close. Clear, correct, concrete. तीनों जो हैं they are a part of 7 C's of effective communication. लेकिन close जो है वो नहीं है. Now question 2 भी 6 questions हैं. 5 attempt करने हैं. हर question 1 mark का है. First part, what are the stores having small size and located in residential area known as? इन्हें हम बोलते हैं convenience store. Corporate retail chain is also called as chain retailer. Which of the following is a global retailer? Walmart. Then what is the full form of GDP? It is gross domestic product. Then which one of the following is not example of e-tailing? So it is Big Bazaar. Sixth, Kirana store are example of unorganized retailing. Question number 3. इसमें भी 6 क्वेश्चंस हैं. 5 करने आपने any 5 एंड यहाँ हर क्वेश्चन यहाँ पे भी 1 मार्क का है. ठीक है. Storage creates time and place utility. Clothes are the example of semi-durable goods. Third part, customer service are considered as intangible. ठीक है. D, which of the following is not example of industrial services? तो the right answer is capital. बाकी तीनों जो हैं वो इंडस्ट्रियल सर्विस के एग्जाम्पल हैं. What is the name of the good which are purchased through unplanned shopping? Impulse good. Then sixth part, goods which are tangible in nature is known as. जो goods tangible हैं उनको हम क्या बोलते हैं? It is they are called as products. Right? Okay. Then fourth is wall merchandising space means. It means the correct answer. अच्छा इसमें भी आपके फोर्थ क्वेश्चन में हम आ गए हैं. राइट. सो यहाँ पे भी आपके 6 क्वेश्चंस हैं. एनी 5 यू हैव टू डू. हर क्वेश्चन जो है यहाँ पे 1 मार्क का है.
Okay. Then after this, wall merchandising space means it include dressing rooms? No. Serve as a fixture for holding merchandise? Yeah, this answer. What is the name of the tool that is used to track number of items in an inventory? Bin card. The purpose of document handling is matching with required. Reducing number of times the object is handled is known as eliminating double handling. Then fifth, name the legal document which is used at the time of dispatching good to the customer. It is invoice. The stock level are also called as it is called as inventory, stock ledger, replenish, accurate. It is called inventory. Okay. Now, based question number 5, 6 में से 5 करने हैं. Any one and every question carries 1 mark. Based on the product, customer can be divided into two categories. Right? Okay. Now, second part, customer service is very important, that is offered before the purchase, during the purchase, and even after the sale of good. Right? Third, the salesperson should always interact with the customer with a smile. Fourth, staff should always provide the honest explanation to the customer. Fifth, retailers take the feedback from customer and identify customer expectation. Then dash customers will not only become customer satisfied customers, also promote the retail store. Section B subjective type questions है इसमें, right? And इसमें आपको पहला एम्प्लॉयबिलिटी स्किल से है, 5 में से 3 करने हैं और यहाँ क्वेश्चन 2 मार्क्स का है. What is the objective of green economy? Green economy क्या है? It will help in maintaining resources for present use as well as future generation. तो green economy resources को present use के लिए भी और future generation के लिए भी maintain करती है. Right? So question number 7. Name any 4 exhibitors of self management. तो आप लिख सकते हैं knowledge, deeds, intentions, habits, etc. Question number 8. Write the difference between computer hardware and computer software. Computer hardware क्या है? Physical parts of the computer, जैसे central processing unit, input device, output device. और computer software क्या है? ये programs हैं जिससे computer run होता है, जैसे MS Word example. Right? Give 4 characteristics of entrepreneurship. Innovation इसमें एक्सप्लेनेशन में डिटेल वीडियो में कर चुकी हूँ, तो आप वहां देख सकते हैं. रिस्क बियरिंग. देन प्रॉफिट पोटेंशियल है, पोटेंशियल फॉर प्रॉफिट. एंड डायनामिक इकोनॉमिक एक्टिविटी. ओके. डिफाइन कम्युनिकेशन साइकिल. कम्युनिकेशन साइकिल इज अ प्रोसेस जहाँ पे एक मैसेज जो है एक इंडिविजुअल पास ऑन करता है दूसरे इंडिविजुअल को. राइट? सो it is a process by which the message is sent from one individual to another one. Right? Okay. After this,
6 में से 4 क्वेश्चंस करने हैं एंड हर क्वेश्चन जो है वो 2 मार्क्स का है। गिव 4 एलिमेंट्स ऑफ कस्टमर सर्विस। सो 4 एलिमेंट्स में और कस्टमर सर्विस में आप लिख सकते हैं, द स्पेस नहीं है, मैं बोल रही हूँ, इफ यू वांट टू राइट डाउन द आंसर यू कैन राइट डाउन। तो फर्स्ट है कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए कस्टमर से डील करने के लिए, इफेक्टिव फेस टू फेस इंटरेक्शन विद द कस्टमर, आर्ट ऑफ लिसनिंग टू द कस्टमर, हैंडलिंग कस्टमर ग्रीवियंसेस स्मूथली। अगर आप नहीं लिख पाए हैं, वीडियो को स्लो प्ले करके यू कैन राइट डाउन। देन व्हाट इज स्टोर रिटेलिंग? स्टोर रिटेलिंग का मतलब क्या है कि गुड्स को, सर्विसेज को स्टोर करना फ्रॉम अ फिजिकल प्लेस और अ स्टोर, इट इज कॉल्ड स्टोर रिटेलिंग। जब आप गुड्स को, सर्विसेज को स्टोर करते हो फिजिकली, उसको बोलते हैं स्टोर रिटेलिंग। 13 मेंशन 4 टेक्निक्स फॉर स्टोरिंग गुड्स। तो शेल्विंग, रैकिंग हो गया, एंड पैलेट्स हो गया। तो ये डिटेल वाली वीडियो में है बेटा, राइट। देन स्टोरेज ऑफ डेंजरस गुड्स, स्टोरिंग फूड safely in a retail store, etc. Now question 14, what are the potential hazards for workers in retail stores? So potential hazards हो सकते हैं आपके fractures, cuts, etc. 15th, why do we need for managing stock level in retail? अगर stock level अच्छी तरह manage होगा तो आपको पता लगेगा कितने items आप ऑर्डर आपने किए थे, कितने और करने हैं। स्टॉक को मैनेज करके पता लग सकता है कि कितने सेल हो गए हैं और कितने और आइटम्स की ज़रूरत है स्टोर में। देन आप कांस्टेंट सप्लाई गुड्स का कर सकते हो टू द कस्टमर, जब भी कस्टमर डिमांड करे। इट लीड्स टू कस्टमर सेटिस्फेक्शन ऑल्सो, राइट। कस्टमर कैन बी कन्वर्टेड इनटू लॉयल कस्टमर। तो ये डिटेल वीडियो में मैंने कराया हुआ है। देन लिस्ट एनी 2 फंक्शंस ऑफ रिटेलर। तो इसके भी हम डिटेल वीडियो में कर चुके हैं। ब्रेकिंग दी बल्क इनटू स्मॉलर क्वांटिटीज, प्रोवाइडिंग प्रोडक्ट एंड सर्विस इंफॉर्मेशन टू द कस्टमर, ये भी रिटेलर का फंक्शन है। कस्टमर को सर्विसेज प्रोवाइड करना, उनके लिए कंफर्टेबल शॉपिंग एक्सपीरियंस देना, ऑल आर द फंक्शंस ऑफ रिटेलर। नाउ 5 में से 3 क्वेश्चंस आपको करने हैं, हर क्वेश्चन जो है वो 4 मार्क का है। पहला है, डू यू थिंक द कस्टमर सर्विस प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन अट्रैक्टिंग कस्टमर? स्टेट 4 एडवांटेजेस दैट यू प्रेफर। तो यस, कस्टमर सर्विस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि इससे कस्टमर्स दे आर सर्व्ड इन अ बेटर वे, रेवेन्यू इंक्रीज होता है, प्रॉफिट इंक्रीज होते हैं, न्यू कस्टमर एक्वायर होते हैं, राइट। और जो है इसमें कस्टमर लॉयल्टी इंक्रीज होती है। नाउ क्वेश्चन 18, स्टोरेज प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन रिटेल ऑर्गेनाइजेशन, जस्टिफाई द स्टेटमेंट बाय प्रोवाइडिंग 4 रीजन। स्टोरेज क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि आज का टाइम बहुत कॉम्पिटिटिव है, आपको गुड्स को स्टोर करके रखना पड़ता है, जब भी कस्टमर डिमांड करे आप उनको गुड्स दे दो। और कई कमोडिटीज ऐसी हैं जो रेगुलर बेसिस में कंज्यूम होती हैं, लेकिन उनकी प्रोडक्शन सीजनल होती है, तो तब भी उनको स्टोर करना है। और कई कमोडिटीज रेगुलर बेसिस में प्रोड्यूस हो रही हैं, लेकिन उनकी डिमांड तभी आएगी जब सीजन होगा, जैसे विंटर वियर, तो भी उनको स्टोर करना ज़रूरी है, ठीक है। और स्टोरेज से क्या हो जाता है कि आपका रॉ मटेरियल्स, आप इजीली जो है स्टोरेज ऑफ रॉ मटेरियल इस तरह करना चाहिए कि इट शुड बी इन सच अ प्लेस, यू कैन से, जहाँ से प्रोडक्ट्स कैन बी गॉट इजीली, तो इसलिए ज़रूरी है। क्वेश्चन 19, स्टॉक शॉर्टेज इज रियल एंड क्लैरिकल। तो आपको डिफरेंस बताना है स्टेटमेंट में। तो रियल कब होता है कि जब वाकई में स्टॉक जो है शॉर्ट हुआ है, बिकॉज गुड्स जो है वो चोरी हो गए हैं या लॉस हुआ है या डैमेज हो गए हैं, ठीक है। क्लरिकल कब होता है? जब गुड्स आए हैं, उनकी काउंटिंग गलत की है स्टाफ, उस स्टाफ ने जिसने गुड्स को रिसीव किया है। सपोज गुड्स तो आए हैं 10 और स्टाफ ने नोट किया 8 आए हैं, तो दैट इज अ क्लरिकल शॉर्टेज। नाउ क्वेश्चन 20, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय हैंडलिंग रिक्वायरमेंट? गिव एग्जांपल ऑफ 4 हैंडलिंग इक्विपमेंट्स। तो हैंडलिंग मीनिंग क्या है हैंडलिंग इक्विपमेंट का, कि स्टोर में जब गुड्स आते हैं तो उनको लोडिंग अनलोडिंग के टाइम में बहुत सारे इक्विपमेंट की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो उसी को बोलते हैं मिट्टी हैंडलिंग इक्विपमेंट। तो देयर आर वेरियस टाइप ऑफ हैंडलिंग इक्विपमेंट, ट्रॉली, बास्केट, बैग्स एक्सेट्रा। तो इसकी भी डिटेल वीडियो है, एंड लेबलिंग मशीन एक्सेट्रा।
नाउ लास्ट क्वेश्चन, डिफरेंशिएट बिटवीन ई शॉपिंग एंड टेलीमार्केटिंग। ई शॉपिंग का मतलब क्या है कि कस्टमर जो है कंफर्टेबली अपने घर से इंटरनेट के थ्रू शॉपिंग कर सकता है ऑनलाइन। टेलीमार्केटिंग में क्या है, इसमें कस्टमर्स के साथ कम्युनिकेट किया जाता है थ्रू टेलीफोन, उनको प्रोडक्ट्स प्रमोट किए जाते हैं एक्सेट्रा, राइट। सो दिस इज ऑल इन दिस वीडियो। आई होप अगर आप ये पेपर सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो डेफिनेटली इट इज़ गोइंग टू हेल्प यू इन प्रिपेयरिंग फॉर योर एग्जाम। एंड पैटर्न जो पेपर का है, अगर आप पेपर सॉल्व करते हैं तो आपको पता लगता है कि कितने 1 मार्कर हैं, कितने आपके 2 मार्कर्स हैं जो एक्सपेक्ट आपसे किए जाते हैं। एमसीक्यूज आप में, एमसीक्यूज में भी आपके काफ़ी सारी बेटा चॉइस है, तो आपको पहले उन एमसीक्यूज को करना है जिसका आंसर आपको अच्छी तरह पता है कि कौन से वो वाले एमसीक्यू जिसके आंसर पता है, आप उन्हीं को पहले अटेम्प्ट करिए, राइट। तो इसमें सॉरी, आप प्रोडक्ट्स नहीं है इसका आंसर, गुड्स विच आर टेंजिबल इन नेचर, दे आर कॉल्ड एज टेंजिबल गुड्स, ये लिख लीजिए, दिस इज रॉन्ग, राइट। So thank you for watching the video. Please hit the like button, share the content with your friends and subscribe to my channel. Thank you for watching.